हेलो क्लास 8th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर है विच इज द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, सपनों का जादुई ब्रश। ठीक है बच्चे, हमने देखो लास्ट वीडियो में देख लिया था इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, तो ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। ठीक है जी, इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा रिकैप देख लें कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़कर आए हैं, जिससे कि जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो बच्चे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारा कुछ हमें फ्रेशन अप रहेगा, है ना। अपने को बहुत हेल्प लग जाएगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का देखेंगे हम अपना क्विक सा रिकैप देखेंगे। तो बच्चे, हम इस पोयम को पहले कंप्लीट रीड करेंगे, आफ्टर देन एक एक स्टेंजा को कंप्लीट समझाते जाएंगे। ठीक है, सो go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. Gopi sits beneath the banyan and twig is in her hand. She sits there drawing pictures. Pictures in the sand. The winds blow by and sweeps away the picture in the sand. But on the stone there sits a man. A brush is in his hand. He looks around. He calls to Gopi, "Come here." He whispers, "Hush." He must let the village know about this magic brush. He slips the brush into her hand and tells her to be sure, paint not for wealthy ones, but only for the poor. Did you gather wild beans, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring home something nice? No beans, no rice, no mangoes. Gopi grins and runs inside. She paints the bowl of khichudis and waits until the paint has dried. The bowl is full of khichdi, Gopi. Into the house the villagers streamed. The young and old all wish to see the magic brush of dream. She paints a muffler for farmer, a plug for another man, a shawl for grandmother, and for a girl a fan. And soon the news is spread far and wide, through forest, wild and plains, until the Zamidar himself hear of this magic gains. I order you to paint for me a fort less tall and grand. Paint treasure, jewels, and riches rare, enough to be rule this land. Gopi vows and shake her hand. My lord, I can't complain. I saw to use this magic brush to help the needy by. The Zamidar roars and stamps his foot. He bellows to his man, sees the brush and sees the girl, throw her in a pan. Now Gopi waits inside the cell upon a cold mud floor until the Zamidar return and shouts through the door. He hold the brush. He thundered loud, "Paint my fortress tall, paint gold and rubies and emeralds bright, and you shall leave this hall." That night the Zamidar lies in bed, dreaming of his gold, while Gopi paints a winding road, a horse both strong and bold. The road leads out of prison gates. The horse she swiftly urges. Gopi leaps on and gallops fast through fields and many villages. It's Gopi, she's back again. She is the villager, merry and kind. But Gopi keeps on painting still, with the Zamidar's band fallen behind. She paints a mighty river wide, its current fast and deep. The Zamidar and all his men stop short and cannot leap. Now should I paint a beast to leap and chase you through? Stop this chase, or it will feast on you and you and you. The Zamidar cries, "No, no, no more. I will leave, I will go away." He turns and flees, his man behind, dare not to choose to stay. Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea,
a courtyard bright, a band to play and songs of victory. क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर अभी क्लियर है तो देखेंगे फिर इस पोयम का मतलब जल्दी जल्दी से मतलब देखेंगे. देखो, go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mango and bring home something nice. गोपी के फैमिली मेंबर बोल रहे हैं गोपी को कि गोपी जाओ और वाइल्ड बीन इकट्ठी करके लाओ, चावल लेकर आओ कुछ, और मैंगोज तोड़ कर लाओ, और घर के लिए कुछ अच्छा लगे तो वो भी लेकर आओ. गोपी सिट्स beneath the banyan. A twig is in her hand. She sits there drawing picture in the sand. गोपी एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाती है. उसके हाथ में एक ट्विग लगी थी, एक लकड़ी लगी थी पेड़ की छोटी सी, है ना. वह वहां बैठकर कुछ ना पिक्चर ड्रॉ करती है. वो जमीन पे वो सैंड जो पड़ी है, मिट्टी जो पड़ी है उस पर. The winds blow by and sweeps away the picture in the sand. हवा आती है और उसकी जो पिक्चर है सैंड पे, जो वो पिक्चर बना रही थी, उसको बहा ले जाती है. But on the stone there sits a man, a brush in his hand. लेकिन एक पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक ब्रश लगा हुआ था. He looks around. He calls to Gopi. Come here, he whisper. Hush. We must not let the village know about this magic brush. उसने इधर उधर देखा और उसने गोपी को बुलाया, इधर आओ. उसने धीमे से बुलाया और चुप रहो, हम इसके बारे में गांव वालों को नहीं बता सकते, इस मैजिक ब्रश के बारे में. He slips the brush into her hand and tells her to be sure. Paint not for wealthy ones, but only for the poor. उसने धीरे से वो ब्रश उस लड़की को दे दिया, उसके हाथों में दे दिया और उसको बताया कि ध्यान रहे, इससे कभी भी अमीरों के लिए पेंट मत करना, बल्कि इससे बस गरीबों के लिए पेंट करना. Did you gather wild bean, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mango and bring home something nice? क्योंकि वो घर लौट आती है तो घर में सब लोग उसको बोलते हैं, गोपी क्या तुम वाइल्ड बीन ले आए? क्या तुम चावल लेकर आए हो? आम तोड़ कर लाए हो? और कुछ अच्छा जो घर के लिए हो वो लेकर आए हो? No bean, no rice, no mangoes. Gopi grins and runs inside. She paints a ball of khichdi and waits until the paint has dried. ना बीन, ना चावल, ना आम. हाँ जी, यही है. गोपी हंसकर बोलती है और अंदर की तरफ चली जाती है. She paints a ball of khichdi and waits until the paint has dried. उसने एक कटोरी खिचड़ी बनाई और इंतजार किया उस पेंट को सूखने का. Ball is full of खिचड़ी गोपी. ये कटोरी तो खिचड़ी से भर गई गोपी. Into the house the villager streamed. The young and old all wish to see the magic brush of dream. उसके घर में अब बहुत सारे गांव वाले आ रहे हैं, बड़े से लेके छोटे तक. सबको देखने की इच्छा हो रही है, उस सपनों का उस मैजिक ब्रश को देखने की इच्छा हो रही है. She paints a muffler for a farmer, a plug for another man, a shawl for a grandmother and for a girl a fan. उसने एक किसान के लिए मफलर पेंट करा, अनदर मैन के लिए एक प्लग पेंट करा, ग्रैंडमदर के लिए एक शॉल और एक लड़की के लिए एक पंखा पेंट करा. And soon the news spread far and wide through forest, field and plains until the zamindar himself hear of this magic gains. जल्दी से जल्दी और जल्दी जल्दी ये खबर भी बहुत दूर दूर तक फैल गई. जंगल पार कर, मैदान पार कर, ये खबर कहाँ तक पहुंची? एक जमींदार के कानों में ये खबर पड़ी इस जादुई चीज के बारे में. तो जमींदार वहां पे आया. I order you to paint for me a fortress tall and grand. Paint treasure, jewels and riches rare enough to rule this land. जमींदार वहां आकर बोलता है, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा और विशाल किला बनाओ, महल बनाओ, मेरे लिए खजाने बनाओ, ज्वेलरी बनाओ
और अनमोल दौलत बनाओ, जिससे कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। गोपी bows and shake her hand. My lord, I can't complete. I sought to use this magic brush to help the needy by. गोपी ने सर झुकाया और सीधा सीधा सर हिलाकर मना कर दिया। माय लॉर्ड, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं इस मैजिक ब्रश का इस्तेमाल केवल गरीबों की मदद करने के लिए करूंगी। द जमींदार roared and stamps his foot. He bellows to his man, seize this brush and seize the girl, throw in her pan. जमींदार धाड़ता है और अपने पैरों को जमीन पर पटककर अपने आदमियों को चिल्लाकर बोलता है, इससे इसका ब्रश ले लो और इस लड़की को पकड़ लो और इसको जेल में डाल दो। Now Gopi wait inside the cell upon a cold mud floor until the जमींदार return and shout through the door. अब जो गोपी है वो जेल के अंदर एक ठंडी मिट्टी की जमीन पर बैठे इंतजार कर रही होती है जब तक जमींदार लौट आता है, और जमींदार उस दरवाजे से ही चिल्लाकर बोलता है, He hold the brush, he thundered loud, paint my fortress tall, paint gold and rubies, emerald bright, and you shall leave this hall. उसने ब्रश को हाथ में पकड़ा था, एकदम तेजी से चिल्लाकर बोलता है, देखो मेरे लिए एक लंबा किला बना दो, मेरे लिए सोना बना दो, रूबी बना दो, चमकीले चमकीले इमराल्ड्स बना दो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। That night the zamindar lies in bed, dreaming of this gold, while Gopi paints a winding road, a horse both strong and bold. उस रात जब जमींदार अपने बेड पर लेटा हुआ था और अपने सोने के ख्वाबों में खो रहा था कि उसके लिए तो सोने चांदी की चीजें बन रही हो, उसका किला विला बन रहा है, उधर गोपी क्या बना रही थी? गोपी एक वाइंडिंग रोड बनाया, गोपी ने घुमावदार रोड बनाया, एक हॉर्स बनाया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहादुर था। द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट, द हॉर्स इज स्विफ्टली अर्ज्ड, गोपी लीप्स ऑन एंड गैलोप्स फास्ट थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस। गोपी ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो कि जेल के गेट से ही शुरू होता है। एक घोड़ा, उस पर वो धीरे से उसके पास आगे बढ़ी और गोपी उस पर कूदकर बैठ गई और वहां से तेजी से भाग गई। ठीक है, और क्या उसने वो सारे फील्ड और गांव पार कर लिए, क्योंकि फील्ड गांव वगैरह पार करके तो फिर इसका घर था, है ना, किसका, अरे कौन था ये, जमींदार का, सॉरी। ठीक है, it's Gopi, she's back again, say the villager, merry and kind, but Gopi keeps on painting still, with the zamindar man's following behind. ये तो गोपी है, गोपी और ये वापस आ गई। जो उसके गांव वाले थे खुशी और प्यार से चिल्ला रहे थे, लेकिन जो गोपी थी अभी भी पेंटिंग करे जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे जमींदार के आदमी पड़े हुए थे, जमींदार पड़ा हुआ था। She paints a mighty river wide, its current fast and deep. The zamindar and all his men stop short and cannot leap. उसने क्या पेंट किया? एक बहुत विशाल गहरी बड़ी नदी पेंट करी जो कि बहुत तेज बह रही थी और बहुत गहरी भी थी। जमींदार और उसके आदमी वहीं रुक गए और वो उसमें आगे कूदकर उसको पार नहीं कर सकते थे। Now should I paint a beast to leap and chase you through? Stop this chase or it will feast on you and you and you. अब वो जमींदार को बोल रही है, अब क्या मैं तुम्हारे लिए एक राक्षस ड्रॉ कर दूं जो तुम पर कूदकर तुम्हारा पीछा करे? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरा पीछा करना बंद करो, अदरवाइज वो तुम्हारी दावत बनाकर तुम सबकी खा जाएगा। The zamindar cries, no, no, no more. I will leave. I will go away. He turns and flees. His men behind dare not choose to stay. जमींदार चिल्लाकर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, अब और नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ। वो पीछे मुड़ता और भाग जाता है। और उसके आदमी भी फिर वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते।
Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea, a courtyard bright, and band to play in songs of victory. अब वो चला गया, गोपी फ्री हो गई। अब गोपी ने अपने गांव वालों के लिए पेंट करना शुरू किया। चाय और मिठाई की एक दावत, एक बड़ा सा आंगन, और उस आंगन में एक बैंड लगवाया, म्यूजिक सिस्टम, जिसमें उसने क्या प्ले किया, जीत के सॉन्ग्स। ठीक है जी। अब क्योंकि हमने अपना शॉर्ट रिकैप कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। देखो, एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव बच्चे लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर देखेंगे क्या है। लेट अस डिस्कस के अंदर जी सबसे पहले वी हैव अरेंज द इवेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द पोयम। The last one has been marked for you. Share your answer with your classmate and teacher. देखो, आपको यहाँ पे कुछ ना इवेंट्स दिए गए हैं, इवेंट्स के अकरेंस दिए गए हैं कि पोयम में क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन ये सारे जो इवेंट्स हैं वो अरेंज नहीं है। ठीक है, तो आपको इन सारे इवेंट को अकरेंस में अरेंज करना है, मतलब सीक्वेंस वाइज इनको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, आफ्टर देन क्या हुआ था, आफ्टर देन क्या हुआ था। ठीक है, और जो लास्ट में आएगा वो ऑलरेडी हमें यहाँ मार्क किया गया है, 10th वाला, जो कि लास्ट में आएगा। ठीक है, अपने आंसर को अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ करना है शेयर। ठीक जी, चलिए, तो अब सारे इवेंट को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सबको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि पहले क्या आएगा, आफ्टर देन क्या आएगा, एंड आफ्टर देन क्या आएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले है गोपी पेंट अ बॉल ऑफ खिचड़ी विच बिकम रियल एंड अमेज द विलेजर। गोपी ने एक खिचड़ी का बॉल पेंट किया जो कि सच बन गया, और जिसने गांव वालों को अमेज कर दिया, हैरान कर दिया। ठीक है, गोपी ने खिचड़ी का बॉल पेंट किया जो कि सच बन गया, जिसने कि गांव वालों को हैरान कर दिया कि ये किससे सच हो गया, है ना। सेकंड है द जमींदार ऑर्डर्स गोपी टू पेंट ट्रेजरस फॉर हिम। जमींदार ने गोपी को ऑर्डर किया ट्रेजरस पेंट करने के लिए। ठीक है, जमींदार ने गोपी को ऑर्डर किया कि तुम उसके लिए खजाने बनाओ। क्लियर है। फिर उसके बाद बच्चे थर्ड वन है गोपी इज टोल्ड टू गैदर फूड बट इंस्टेड सिट्स ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड। गोपी को बताया गया था कि तुम बाहर जाके खाना इकट्ठा करके लेके आओ, फूड गैदर करके लेके आओ, बट बजाय इसके वो तो बैठ के सैंड के अंदर पिक्चर्स ड्रॉ कर रही थी, है ना, मिट्टी में वो तो पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। फोर्थ वन है गोपी रिटर्न टू द विलेज विद द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर। गोपी रिटर्न टू द विलेज विद द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर। गोपी अपने गांव लौट आई और जो जमींदार थे और वो जो आदमी थे जमींदार के, वो उसको चेज कर रहे थे। ठीक है, वो उसका पीछा कर रहे थे। फिफ्थ वन है द जमींदार थ्रो गोपी इनटू प्रिजन। जमींदार ने गोपी को जेल में डाल दिया। ठीक है जी। उसके बाद सिक्स्थ वन है गोपी पेंट अ रोड एंड हॉर्स टू एस्केप। गोपी ने रोड पेंट किया और एक हॉर्स पेंट किया भागने के लिए। फिर सेवंथ है बच्चे गोपी यूज द मैजिक ब्रश टू पेंट यूजफुल आइटम फॉर द विलेजर। गोपी ने उस मैजिक ब्रश का यूज करती थी यूजफुल आइटम बनाने के लिए गांव वालों के लिए। गोपी गांव वालों के लिए यूजफुल आइटम बनाने के लिए उस मैजिक ब्रश का यूज करती थी। एट्थ है गोपी पेंट अ वाइड रिवर स्टॉपिंग द जमींदार एंड हिज मैन। गोपी ने एक बड़ी गहरी चौड़ी नदी ड्रॉ करी, पेंट करी। क्यों करी? जमींदार और उसके आदमियों को रोकने के लिए। ठीक है। नाइन्थ है अ मैन गिव्स अ मैजिक ब्रश टू गोपी टू पेंट ओनली फॉर द
पुअर। जो मैन था, आदमी था, उसने मैजिक ब्रश गोपी को दिया कि वो केवल गरीबों के लिए उससे पेंट करे। ठीक है। 10th है, गोपी scares the जमींदार away and celebrated with the villager। गोपी ने जमींदार को डरा के भगा दिया और गांव वालों के साथ सेलिब्रेट किया। ठीक है, सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए। करते हैं अब इनको अरेंज। देखो, सबसे पहले आ जाएगा बच्चे थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है? गोपी is told to gather food but instead sits drawing picture in the sand। गोपी को बोला गया था फूड इकट्ठा करके लेके आओ, लेकिन बजाय इसके वो क्या कर रही थी? बैठकर मिट्टी में पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चे 9th वाला। A man gives a magic brush to गोपी to paint only for the poor। जब वो वहां बैठकर पिक्चर ड्रॉ कर रही थी, उसी के पास एक पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ था, है ना। फिर उसने क्या किया? उसने गोपी को एक मैजिक ब्रश दिया और बोला कि बी श्योर कि इस मैजिक ब्रश से तुम केवल पुअर वंस के लिए पेंट करो, गरीबों के लिए पेंट करो। तो 9th वाला है, अ मैन गिव्स अ मैजिक ब्रश टू गोपी टू पेंट ओनली फॉर द पुअर। इसके बाद बच्चे थर्ड है, जो कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रहेगा। गोपी पेंट अ बॉल ऑफ खिचड़ी विच बिकम रियल एंड अमेज द विलेजर। गोपी ने घर आके क्या किया? एक खिचड़ी का बॉल पेंट किया जो कि सच बन गया और उसने गांव वालों को हैरान कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे 7th वाला आएगा। गोपी यूज द मैजिक ब्रश टू पेंट यूजफुल आइटम फॉर द विलेजर। गोपी ने उस मैजिक ब्रश का यूज किया गांव वालों के लिए यूजफुल आइटम पेंट करने के लिए। इसके बाद बच्चे हमारा सेकंड आएगा। द जमींदार ऑर्डर गोपी टू पेंट ट्रेजरस फॉर हिम। जमींदार ने गोपी को ऑर्डर दिया कि वो उसके लिए ट्रेजरस पेंट करे, वो उसके लिए खजाने पेंट करे। उसके बाद बच्चे 5th आएगा। जमींदार थ्रो गोपी इनटू प्रिजन। जब जमींदार ने उसकी बात को रिफ्यूज कर दिया तो उसने क्या किया? गोपी को प्रिजन में डाल दिया, गोपी को जेल में डाल दिया। तो द जमींदार थ्रू गोपी इनटू प्रिजन। जमींदार ने गोपी को जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद बच्चे 6th वाला आएगा। गोपी पेंट अ रोड एंड हॉर्स टू एस्केप। गोपी ने एक रोड पेंट किया और एक हॉर्स पेंट किया भागने के लिए। जब उसको जेल में डाल दिया तो उसने एक आइडिया लगाया कि उसने फिर एक रोड और एक हॉर्स पेंट किया वहां से भागने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे 4th वन आएगा। गोपी रिटर्न टू विलेज विद द जमींदार एंड हिज मैन चेजिंग हर। गोपी गांव लौट आई, लेकिन उसके पीछे अभी भी जमींदार और उसके आदमी उसको चेज कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे 8th वन आएगा। गोपी पेंट अ वाइड रिवर स्टॉपिंग द जमींदार एंड हिज मैन। गोपी ने एक बड़ी गहरी नदी ड्रॉ करी जमींदार और उसके आदमियों को रोकने के लिए। उसके बाद बच्चे 10th तो हमारा फिक्स्ड है, 10th वाला ही आएगा। गोपी स्कैर द जमींदार अवे एंड सेलिब्रेट विद द विलेजर। गोपी ने जमींदार को डरा के भगा दिया और विलेजर्स के साथ बच्चे सेलिब्रेट किया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अगर क्लियर है तो इनको वंस रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले थर्ड आएगा। गोपी इज टोल्ड टू गैदर फूड बट इंस्टेड सिट ड्रॉइंग पिक्चर इन द सैंड। आफ्टर देन बच्चे 9th है। अ मैन गिव्स अ मैजिक ब्रश टू गोपी टू पेंट ओनली फॉर द पुअर। आफ्टर देन फर्स्ट है। गोपी पेंट a ball of khichdi which become real and amaze the villager. After then 7th है। Gopi used the magic brush to paint useful item for the villager. After then बच्चे 2nd है। The जमींदार orders Gopi to paint treasures for him. After then 5th है। The जमींदार throw Gopi into
prison. After then sixth है Gopi paint a road and horse to escape. After then बच्चे fourth है Gopi returned to village with the zamindar and his man chasing her. After then बच्चे eighth है Gopi paint a wide river stopping the zamindar and his man. After then जी 10th तो हमारा फिक्स है Gopi scares the zamindar away and celebrated with the villagers. क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगर नहीं है तो मूव करेंगे देन अपने नेक्स्ट वन पे. सो हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चे हमारा सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. देखो हमें अपने फिलअप्स को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है. सो उनकी हेल्प से हम अपने फिलअप्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है. चलिए देखेंगे तो एक पैराग्राफ टाइप है हमारे पास. पैराग्राफ क्या है? द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट्स थ्रू आउट रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ द स्टोरी. जो पोएम का जो टोन है शिफ्ट्स थ्रू आउट मतलब बार बार बदलता है एंड रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्टोरी. इनिशियली द टोन इज, शुरुआत में इस पोएम का टोन क्या था कि जो गोपी है वो उसको बाहर खाना गैदर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो तो बाहर जाके आराम से वो ड्राइंग कर रही होती है सैंड पर, है ना. तो एक प्लेफुल और एक बड़ा इनोसेंट सा जो टोन है इसका जो पोएम का है ना. तो इनिशियली द टोन इज प्लेफुल एंड इनोसेंट as Gopi use her imagination to draw in the sand, है ना. and later when जमींदार entered the story, और जब बाद में जमींदार ने स्टोरी में एंटर कर लिया तो टोन कहाँ शिफ्ट हो गया? टेंशन एंड सस्पेंस में या फिर थिरोफेंट एंड सेलिब्रेटरी में? बताइए, थोड़ा टेंशन वाला जोन आ गया था, है ना. सो टेंशन एंड सस्पेंस, ठीक है. इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोएम और लास्ट में द टोन बिकम, लास्ट में टोन कैसा हो गया? जब गोपी वहाँ से भाग गई और जमींदार हार गया तो थोड़ा सेलिब्रेट वाला मूड बन गया, है ना. सो थिरोफेंट एंड सेलिब्रेटरी एज गोपी एस्केप्ड, जैसे गोपी भाग गई. द जमींदार इज डिफीटेड, जमींदार हार गया. एंड द विलेजर्स रिजॉइस, और गांव वाले खुश हो गए, ठीक है. ये था हमारा फिलअप. चलिए तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे. देन द टोन ऑफ द पोएम शिफ्ट थ्रू आउट रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्टोरी. Initially, the tone is playful and innocent as Gopi uses her imagination to draw in the sand. And later, when the zamindar entered the story, the tone shifts to one of tension and suspense. In the final part of the poem, the tone becomes triumphant and celebratory as Gopi escaped, the zamindar is defeated, and the villagers रिजॉइस. ठीक है, क्लियर है. चलिए अगर क्लियर है तो देखेंगे बच्चे अपना थर्ड वन. हमारा थर्ड वन क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट. देखो हमें अपने फिलअप्स को कंप्लीट करना है और हमारे पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है. उन ऑप्शन से हमें अपने फिलअप्स को कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट है, द पोएम मोस्टली फॉलोज अ सिंपल रिदम स्कीम विच एड अ रिदमिक फिलो. देखो हमारी जो पोएम मतलब बेसिकली पोएम क्या एक सिंपल राइमिंग स्कीम फॉलो करती हैं, लाइक ए बी बी, ए बी सी बी, ए बी बी ए बी टाइप, है ना. तो जो कि हमारी पोएम में रिदमिक फ्लो ऐड करता है. तो इस पोएम ने किस टाइप का राइमिंग स्कीम फॉलो किया है बताइए. आपने लाइंस पढ़ी हैं जैसे हैंड सेंड, गोपी हश, राइमिंग इन द फर्स्ट स्टेंजा, है ना. तो किस टाइप का एक फ्लो है? ए बी सी बी,
है ना, ABCB टाइप का है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है, ABCB। ठीक है, द मोस्टली पोएम फॉलोज अ सिंपल राइमिंग स्कीम इज ABCB विच एड्स अ रिदमिक फ्लो। ठीक है, सेकंड है, दिस पोएम बिलोंग्स टू द पोइट्री कहाँ गया, दिस पोएम बिलोंग्स टू डैश पोइट्री जेनर विच टेल्स अ स्टोरी थ्रू वर्ड्स। ये पोएम किससे बिलोंग करती है, जो कि बताता है स्टोरी को थ्रू वर्ड्स, तो किससे बिलोंग करती है बताइए। ऑप्शंस वी हैव डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन में, नरेटिव और बोल्ड, बैलेड या फिर फ्री स्टाइल। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा बच्चे, नरेटिव एंड बैलेड। ठीक है, तो दिस पोएम बिलोंग्स टू द पोइट्री जेनर विच टेल्स अ स्टोरी थ्रू वर्ड्स, नरेटिव एंड बैलेड। ठीक है, क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करें। देन देखो फर्स्ट है हमारा जी, फर्स्ट है द पोएम मोस्टली फॉलो अ सिंपल राइमिंग स्कीम, जिसमें आएगा ABCB विच एड अ रिदमिक फ्लो। ठीक है, सेकंड है दिस पोएम बिलोंग्स टू द डैश पोइट्री जेनरे विच टेल्स अ स्टोरी थ्रू वर्ड्स। यहाँ पर आएगा बच्चे नरेटिव और बैलेड। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। चलिए अगर अच्छे से क्लियर है बच्चे, देन मूव करना चाहिए ना हमें अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। हमें पोएम से गिव एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल देना है इस एक्सप्लेनेशन का। जैसे द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। ये जो पोयम है ये इमेजिनरी से भरी हुई है ना, और ये रीडर्स के माइंड में क्लियर पिक्चर क्रिएट करती है। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे माइंड में हमारी एक पिक्चर क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये किस लाइन से बिलोंग कर रही होगी, मतलब क्या आप यहाँ एग्जाम्पल देंगी। जैसे उसने बोला शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड इट करंट फास्ट एंड डीप। यहाँ रिवर के लिए बोला गया था कि उसने एक बहुत माइटी रिवर वाइड, मतलब माइटी वाइड रिवर पेंट करी जो कि इट्स करंट फास्ट एंड डीप, है ना। तो हम इसको एक तरीके से माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, हम इसको ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ आप आंसर लिख सकते हो, द पोएम इज रिच इन इमेजिनरी क्रिएटिंग क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। For example, she paints a mighty river wide, its current fast and deep, vividly described a wide rushing her. Clear? Any doubt here? चलिए नहीं है तो सेकेंड वन देखेंगे। What is the effect of repetition in the line on you and you and you? ये जो हमारा ये रिपीटेशन हुई है लाइन की, क्या इफेक्ट क्रिएट कर रही है, लाइक कौन सी लाइन, ऑन यू एंड यू एंड यू, है ना, तो ऑल ऑफ यू टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इन द लाइन ऑन यू एंड यू एंड यू इज इट एम्फेसाइज गोपीज थ्रेट टू द जमींदार। गोपी जो जमींदार और उसके लोगों को डराना चाह रही थी, है ना, मेकिंग इट साउंड सीरियस, जो कि सीरियस थोड़ा सा वो साउंड क्रिएट करना चाह रही थी, एंड डायरेक्टेड एट ईच पर्सन, और वो एक एक बंदे के लिए बोल रही थी कि तुम सबको, ऑल ऑफ यू टाइप। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इन द लाइन ऑन यू एंड यू एंड यू इज इट एम्फेसाइज गोपीज थ्रेट टू द जमींदार एंड हिज मैन, making it sound serious and directed at each person. Clear है? Any doubt? नहीं है तो then we should move on to our next question बच्चे, which is
Match the phase from the poem in column 1 with what they symbolize in column 2. देखो कॉलम 1 में एक फेज है जिसको सिंबलाइज किया गया है कॉलम 2 के साथ. सो सिंपली उनको करना है बच्चे हमें मैच. ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो देखना चाहिए. कॉलम 1 में है द मैजिक पेंट ब्रश. इसके लिए क्या रहेगा? द मैजिक पेंट ब्रश. फर्स्ट, ग्रीड एंड द डिजायर फॉर वेल्थ. थोड़ा लालची और धन दौलत का डिजायरी. नो. सेकंड, बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर. ये एक बैरियर है गोपी को बचाने के लिए जमींदार के गुस्से से. नो. थर्ड है द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, फर्स्ट का थर्ड वन करेक्ट है कि द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड. ठीक है, द मैजिक पेंट ब्रश का हो जाएगा थर्ड वन. द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड. क्लियर? सेकेंड वन देखेंगे द ग्रैंड फोर्ट्रेस. एक बड़ा किला जो कि क्या दिखा रहा है? लालच दिखा रहा है और पैसों को लेके एक डिजायरनेस दिखा रहा है ना. तो इसका फर्स्ट वन देखो, ग्रीड एंड द डिजायर फॉर वेल्थ. ग्रीड एंड द डिजायर फॉर वेल्थ. तो द ग्रैंड फोर्ट्रेस का हो जाएगा फर्स्ट वन, ग्रीड एंड डिजायर फॉर वेल्थ. थर्ड है बच्चे द रिवर एंड द बीस्ट. ये रिवर और बीस्ट क्या थे? बैरियर थे जो गोपी को बचा रहे थे जमींदार के एंगर से, है ना. सो बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर. थर्ड वन का है सेकंड वन, बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर. क्लियर है? चलो तो इनको वंस एक बार इनको भी रीड करेंगे. देखो फर्स्ट है द मैजिक पेंट ब्रश जिसका थर्ड वन करेक्ट है. द पावर ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन टू चेंज द वर्ल्ड. सेकंड है द ग्रैंड फोर्ट्रेस जिसका जी फर्स्ट वन करेक्ट है. ग्रीड एंड द डिजायर फॉर वेल्थ. थर्ड वन है द रिवर एंड द बीस्ट जिसका सेकंड वन करेक्ट है. बैरियर टू प्रोटेक्ट गोपी फ्रॉम द जमींदार्स एंगर. क्लियर है? एनी डाउट? चलिए अगर नहीं है देन अपने सिक्स्थ वन पे मूव करेंगे. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सिंपली हमें स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, सो देख लेंगे. देखो स्टेटमेंट क्या है? While Gopi used the magic brush to help others, the zamindar want to use it for personal gain. This contrast derives the moral of the story. देखो जहाँ गोपी इस मैजिक ब्रश को दूसरों की हेल्प के लिए यूज कर रही थी, वहीं जमींदार चाहता था इस मैजिक ब्रश को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए. क्या ये ट्रू है? ट्रू है. और ये जो कंट्रास्ट है, ये जो लाइन है, क्या ड्राइव करती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी भी ड्राइव करती हैं, है ना. सो जी ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स? परफेक्टली ट्रू है ना. सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. अगर आपको बच्चे इसके लिए कोई रीज़न मेंशन करना है तो यह रीज़न भी है कि गोपी यूज द मैजिक ब्रश टू हेल्प अदर शोइंग काइंडनेस एंड जेनरसिटी. ठीक है, वेयर जमींदार यूज इट फॉर पर्सनल गेन शोइंग ग्रीड. The difference highlights of the moral of the story. Selfless action are good and greed leads to harm. Moral बना देता है ये चीज़, है ना, कि selfless action are good and greed leads to harm. Clear? कोई इसमें बच्चे डाउट? चलिए अगर नहीं है देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चे जी वी हैव Let us think and reflect. सोचो और लिखो. ठीक है, जिसके अंदर बच्चे हमारे पास फर्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके बिहाफ पे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर करने हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना एक्सट्रैक्ट ही पढ़ लेंगे.
But on a stone there sits a man, a brush in his hand. लेकिन एक स्टोन पर वहीं एक आदमी बैठा हुआ था, a brush in his hand, और उसके हाथ में एक ब्रश था. ठीक है. He looks around, उसने इधर उधर देखा मैन ने. He calls to गोपी, और उसने गोपी को बुलाया. Come here, he whispers, इधर आओ, धीमे से बोला. हश, चुप रहो. We must not let the village know, हमें इसके बारे में गांव वालों को नहीं बताना. About this magic brush, इस मैजिक ब्रश के बारे में. He slips the brush into her hand, उसने इस ब्रश को उस लड़की के हाथ में दे दिया. And tell her to be sure, और उसको बताया कि ध्यान रहे. Paint not for the wealthy ones, कभी भी अमीरों के लिए पेंट मत करना. But only for the poor, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए पेंट करना इससे. ठीक है. ये था हमारा क्या, एक हमारा स्ट्रेंजर था जो रीड करना था. अब इसके बिहाफ पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके करेंगे हम आंसर्स. जैसे फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है. हमें फिलअप्स देखने हैं और फिलअप के हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिए गए हैं, उसमें से अपना आंसर चूज करना है. जैसे फर्स्ट है द मैन इज विस्परिंग एंड टेलिंग गोपी टू कीप द ब्रश अ सीक्रेट. जो आदमी था वो फुसफुसा के गोपी को बता रहा था कि इस ब्रश को एक सीक्रेट रखना. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, केयरफुल एंड सीक्रेटिव या फिर मैजिकल एंड डिलाइटफुल नेचर. ये उस मैन का क्या नेचर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ध्यान केयरफुल और सीक्रेट रखने के लिए, या कुछ जादुई और डिलाइटफुल. नहीं, जादुई और डिलाइटफुल तो वो एक ब्रश था, है ना. मैन का तो यहाँ केयरफुल और सीक्रेटिव नेचर दिखाई दिया है. तो यहाँ पे आएगा बच्चे केयरफुल एंड secretive. The man is whispering and telling Gopi to keep the brush a secret, reflect his careful and secretive nature. ठीक है. क्लियर है. चलिए क्लियर है तो देखेंगे अपना सेकेंड वन. What is the significance of man slipping the brush into Gopi's hand? इस बात का क्या मतलब है कि मैन ने वो ब्रश गोपी के हाथ में दे दिया. इस चीज़ का क्या मतलब दिखाई दे रहा है, क्या महत्व दिखाई दे रहा है. सिंपली उसने अपनी इतनी कीमती चीज़ गोपी को दी तो उस पर ट्रस्ट कर रहा है गोपी पे, है ना, कि वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकती है अच्छे कामों में, है ना. तो यहाँ पे मैन का ट्रस्ट है गोपी के लिए, है ना. सो जी यहाँ क्या हमारा आंसर रहेगा. इट शोज, क्या दिखाता है, ही ट्रस्ट गोपी टू यूज द मैजिक ब्रश रिस्पॉन्सिबली फॉर द गुड पर्पस. इट शोज ही ट्रस्ट गोपी टू यूज द मैजिक ब्रश रिस्पॉन्सिबली फॉर गुड पर्पस. ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन स्लिपिंग द ब्रश इनटू गोपीज हैंड. So it shows he trusts Gopi to use the magic brush responsibly for good purpose. क्लियर है, समझ आ गया. चलिए अगर समझ आ गया तो थर्ड वन पे मूव करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल रीज़न. अपने सेंटेंस को कंप्लीट करो एक सही रीज़न देकर. ठीक है. जिसमें है The most likely reason the man is instruct Gopi, paint not for wealthy ones, but only for poor. एक most likely reason कि मैन ने गोपी को इंस्ट्रक्ट किया, मैन ने गोपी को निर्देश दिया कि कभी अमीरों के लिए पेंट मत करना, बस सिर्फ गरीबों के लिए करना. क्यों कहा था उसने ये, मैन ने गोपी से ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था जिनको सच में ज़रूरत है ना. और जो रिच है वो तो उनको तो किसी चीज़ की इतना ज़रूरत नहीं होती, है ना. बिकॉज क्यों चाहता था वो, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प दोज हु नीड इट मोस्ट. क्योंकि वो बस उनकी हेल्प करना चाहता था जिनको सच में ज़रूरत होती थी.
नॉट दोज हु आर ऑलरेडी रिच, ना कि उनके जो कि ऑलरेडी अमीर हैं, है ना। सो द मोस्ट लाइकली रीजन द मैन इंस्ट्रक्ट गोपी टू पेंट नॉट फॉर वेल्दी वंस but only for the poor is because he wants to help those who need it most, not those who are already rich. ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो फोर्थ वन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टू गिवन बिलो। देखो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे आपको अगर कुछ एक सही टाइटल अगर आपको चूज करना है, क्या चूज करेंगे? अ मैजिक ब्रश सीक्रेट, जादुई ब्रश का सीक्रेट, या फिर गोपीज स्पेशल गिफ्ट, गोपी का स्पेशल गिफ्ट। बताइए आप यहाँ क्या चूज करेंगे। एक्चुअली देखो आपका खुद को ओपिनियन रहेगा आप क्या चूज करेंगे, लेकिन फिर आप इधर उसका आंसर भी मेंशन करिएगा, है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू मी A1 इज करेक्ट, मैजिक ब्रश सीक्रेट मेरे अकॉर्डिंग रहेगा इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल मैजिक ब्रश सीक्रेट। क्यों? बिकॉज इट फोकस द on the secrecy and the brush's magic, because it focuses on the secrecy and the brush's magic। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकंड है, एज सून द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स until the zamindar himself hear of these magic gains, I order you to paint for me a fortress tall and grand, paint treasures, jewels and riches rare, enough to rule this land। देखो थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स, ये जंगल मैदान प्लेन्स को पार कर until the जमींदार हिमसेल्फ, जब तक जमींदार ने खुद हेयर ऑफ दिस मैजिक गेन, इस जादुई चीज के बारे में सुना। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी, तब जमींदार ने आके उस लड़की को ऑर्डर किया कि मेरे लिए पेंट करो। क्या पेंट करो? अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, एक बड़ा लंबा महल फोर्ट्रेस किला पेंट करो मेरे लिए। पेंट ट्रेजरस, खजाने पेंट करो। ज्वेल्स, आभूषण पेंट करो, ज्वेलरीज पेंट करो। एंड रिचेस रेयर, और दुनिया की अद्भुत दौलत पेंट करो। इनफ टू रूल दिस लैंड, इस धरती पर राज करने के लिए जो काफ़ी रहे उतना पेंट करो मेरे लिए। ठीक है, तो ये एक हमारा स्ट्रेंजा है। इसके बिहाफ पे बच्चे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट रीजन। अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सही रीजन के साथ। जैसे है, द न्यूज ऑफ गोपीज मैजिक ब्रश स्प्रेड, गोपी के जादुई ब्रश का जो न्यूज फैली थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स, फॉरेस्ट फील्ड और प्लेन पार कर क्यों फैली थी? बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों फैली थी बताइए? बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग एबिलिटी, उसकी अद्भुत योग्यता टू क्रिएट रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेंटिंग, जो कि रियल ऑब्जेक्ट बना देती थी पेंटिंग से। ठीक है, सो द न्यूज ऑफ गोपीज मैजिक ब्रश स्प्रेड थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग एबिलिटी टू क्रिएट रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेंटिंग। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो सेकंड वन देखेंगे। सेकंड वन है, why does the poet refer to things painted by Gopi's paintbrush as magic grains? पोइट ने गोपी के पेंट ब्रश को मैजिक गेन्स क्यों कहा, क्यों रेफर किया बताइए? क्योंकि वो मतलब कोई भी चीज बनाओ, कोई भी यूजफुल आइटम बनाओ, वो रियल हो जाता था, है ना। सो द पोइट रेफर्ड टू थिंग्स painted by Gopi's paintbrush as magic gains,
जादुई कमाई, जो गोपी के पेंट ब्रश से कुछ भी पेंट होता था उसको जादुई गेंद क्यों कहा? बिकॉज दे बिकम रियल यूजफुल आइटम दैट बेनिफिट्स द villager. The poet refers to things painted by Gopi's paintbrush as magic gains because they become real, useful item that benefits the villagers. क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया? चलिए, अगर समझ आ गया तो थर्ड वन पे मूव करेंगे. थर्ड वन है Which of the following statements given below is false? कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से गलत है? रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. और जो स्टेटमेंट हमारी गलत है फिर उसको करना है रेक्टिफाई. फर्स्ट वन देखेंगे ए वाला, जो कि है गोपीज मैजिक ब्रश ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पावरफुल जमींदार. गोपी का मैजिक ब्रश ड्रॉ करता था अटेंशन ऑफ पावरफुल जमींदार. और बी वाला, जमींदार रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेलर्स. या फिर पहला वाला तो ठीक है कि गोपी के जादुई ब्रश ने पावरफुल एकदम दमदार जो जमींदार था उसका अटेंशन खींच लिया. ये तो सही बात है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. सेकंड है कि जमींदार ने गोपी को रिक्वेस्ट करा कि वो उसके लिए बहुत बड़ा किला ज्वेलरीज वगैरह बना दे. सीरियसली रिक्वेस्ट किया था, नहीं उसको ऑर्डर किया था, है ना. तो B1 फॉल्स है. और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है देन? द जमींदार ऑर्डर्स गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस इन ज्वेल्स. ठीक है, द जमींदार ऑर्डर्स गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने फोर्थ वन पे. फोर्थ वन है व्हाट डज द जमींदार्स डिमांड फॉर अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर. जो जमींदार की डिमांड थी, बड़ा किला ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें, ये उसके कौन से कैरेक्टर को दिखाती हैं कि उसका कैसा किस टाइप का कैरेक्टर होगा. बहुत ग्रीडी होगा, है ना. और उसको शान से औरत से ही प्यार होगा, लाइक वो पावर और वेल्थ ही चाहता होगा. उसका यही तो कैरेक्टर दिख रहा है कि वो कितना ग्रीडी था, कितना लालची था, है ना. तो द जमींदार्स डिमांड फॉर द ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स रिवील्स अबाउट हिज कैरेक्टर दैट ही इज ग्रेडी एंड वांट्स पावर एंड वेल्थ. द जमींदार्स डिमांड फॉर अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर that he is greedy and wants power and wealth. क्लियर है? समझ आ गया बच्चे अच्छे से? चलिए, अगर समझ आ गया देन मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस के आंसर करना. ठीक है, जिसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई गोपी मेड द राइट डिसीजन by refusing to paint for जमींदार. एक्सप्लेन करो कि क्यों गोपी ने सही डिसीजन लिया जमींदार के लिए पेंट करने से मना करके. बताओ क्यों गोपी का जो डिसीजन था वो सही था कि उसने जमींदार के लिए पेंट करने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि जो जमींदार था वो ग्रीडी था, है ना. और वो उस ब्रश का मिसयूज करना चाहता था अपने पर्सनल गेन के लिए, है ना. और उसने सबसे बड़ी बात, उसने उस मैन से प्रॉमिस किया था कि वो इस ब्रश का यूज केवल और केवल पुअर लोगों के लिए और नीडी पर्सन के लिए करेगी, है ना. तो वो अपने प्रॉमिस पे भी लॉयल थी. दैट्स व्हाई उसने उसको रिफ्यूज कर दिया जमींदार को कि मैं आपके लिए पेंट नहीं कर सकती, है ना जी. तो देखो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा हमारा. Gopi made the decision because the zamindar was greedy and wanted to misuse the brush for personal gain. Gopi remained loyal to her promise to use the brush only for the poor and needy. ठीक है, Gopi made the right decision because the zamindar was greedy and wanted to misuse the brush for personal gain. Gopi remained loyal to her promise
to use the brush only for the poor and needy. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो सेकंड वाला देखेंगे. गोपी threatens to draw a beast to scare away the जमींदार. गोपी ने मतलब उनको धमकाने के लिए बोला कि मैं तुम्हारे लिए बीस्ट ड्रॉ करूं, है ना, जिसकी वजह से जमींदार भाग गई. जस्टिफाई हर एक्शन, उसके एक्शन को जस्टिफाई करो. हाउ वुड यू हैव डील्ड विद द सिचुएशन डिफरेंटली. आप अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप और क्या करते. इस एक्शन को जस्टिफाई करो, बताओ, इस एक्शन को बताओ. ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर रहेगा. गोपी का क्या वो जो एक्शन था वो जस्टिफाइड था, ठीक था. गोपी ने ऐसा उनको धमकाने के लिए कहा या किया तो सही था, क्योंकि वो खुद को बचाना चाहती थी और जमींदार को उस ब्रश को मिसयूज करने से रोकना चाहती थी, है ना. उसने अपनी चतुराई दिखाई, बिना उनको हर्ट किए, बिना किसी को हर्ट किए, और उनको भगा दिया, है ना. अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते. हम भी आई थिंक सेम कुछ ऐसा ही ट्राई करते, है ना, जिससे कि हम जमींदार को भगा सकें. ठीक है, तो यहाँ बच्चे आंसर क्या रहेगा. गोपीज एक्शन वॉज जस्टिफाइड बिकॉज शी वॉज प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, स्टॉपिंग द जमींदार फ्रॉम द मिसयूज द ब्रश. Gopi's action was justified because she was protecting herself and stopping the zamindar from the misuse the brush. She used her cleverness to scare him away without hurting anyone. If I were in her place, I might have done the same or tried to convince the villager to stand up against the zamindar together. है ना? Gopi's action was justified because she was protecting herself and stopping the zamindar from misuse the brush. She used her cleverness to scare him away without hurting anyone. If I were in her place, I might have done the same or tried to convince the villager to stand up against the zamindar together. ठीक है, क्लियर है. चलिए, अगर क्लियर है देन मूव करेंगे बच्चे अपने थर्ड वन पे. थर्ड है हमारा क्वेश्चन. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोपी सेलिब्रेटिंग विद द विलेजर एट द एंड ऑफ द पोयम. ये क्या चीज बताता है कि गोपी ने लास्ट में विलेजर्स के साथ सेलिब्रेट किया. क्या दिखाता है ये. इट शोज दैट गुडनेस एंड काइंडनेस विन इन द एंड. लास्ट में अच्छाई और दयालुता की जीत हुई. इट ऑल्सो हाईलाइट्स गोपीज लव फॉर हर विलेजर. गोपी का प्यार भी दिखाता है अपने गांव के लिए. एंड हर सेल्फलेस यूज ऑफ ब्रश टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर. और उसने उस ब्रश का सेल्फलेस यूज किया जिससे कि दूसरों के चेहरे पे खुशियां भी आई, है ना. सो इट शोज दैट गुडनेस एंड काइंडनेस विन इन द एंड. It also highlights Gopi's love for her village and her selfless use of brush to bring happiness to other. ठीक है, फोर्थ वन देखेंगे बच्चे. फोर्थ वन we have compare Gopi's use of magic brush to how जमींदार would have used it. कंपेयर करो कि जो गोपी ने मैजिक ब्रश का यूज किया, वैसे ही अगर जमींदार के हाथ में वो मैजिक ब्रश होता तो जमींदार क्या करता. देखो, गोपी ने उसका यूज कैसे किया था. पुअर्स की हेल्प करके और उनको खुशियां देके. जमींदार उसको कैसे यूज करता. वो अपने लिए वेल्थ और पावर पेंट करता, है ना. गोपी ने इसको जेनरियस एंड काइंड के लिए पेंट किया. जमींदार उसको एक ग्रीडी और हार्मफुल के लिए, मतलब जमींदार का पेंट करना ये ग्रीडी और हार्मफुल था. ठीक है, तो गोपी यूज द ब्रश टू हेल्प द पुअर एंड ब्रिंग जॉय, while जमींदार wanted to use it to get wealthy and power for himself. Gopi use was generous and kind, but the जमींदार's use would have been greedy and harmful. ठीक है, Gopi used the brush to help the poor and bring joy,
while the zamindar wanted to use it to get wealth and power for himself. Gopi's use was generous and kind, but the zamindar's use would have been greedy and harmful. क्लियर है? अच्छे से समझ आया? चलिए तो फिफ्थ वन देखेंगे. What can be inferred about Gopi's character based on her refusal to follow the जमींदार's order? यह गोपी के किस कैरेक्टर को दिखाता है कि जब उसने जमींदार के ऑर्डर को मना कर दिया था. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है उसकी कि वो कितना ब्रेव थी, कितना ईमानदार थी, कितना दयालु थी और कितना दृढ़ निश्चयी थी, है ना. ये सब दिखाता है ना. तो यहाँ लिखेंगे गोपी इज ब्रेव, ऑनेस्ट, काइंड एंड डिटरमाइंड. She values helping others over fear or pressure, and she stayed true to her moral even when threatened. Gopi is brave, honest, kind, and determined. She values helping others over fear or pressure, and she stayed true to her moral even when threatened. ठीक है. सिक्स्थ वन देखेंगे. Justify the appropriateness of the title of the poem. Justify करो भाई कि जो टाइटल का पोएम का जो टाइटल है वो appropriate है. तो यहाँ हम लिखेंगे the title The Magic Brush of Dream is appropriate because the brush fulfill the dream of poor people by turning helping drawing into real thing. It brings hope and change through kindness and imagination. है ना. So the title, which is the magic brush of dream, is appropriate because the brush fulfill the dream of poor people by turning helpful drawing into real things. It brings hope and change through kindness and इमेजिनेशन. ठीक है. सेवंथ वन पे मूव करेंगे. इफ यू हैड द मैजिक ब्रश, अगर तुम्हारे पास मैजिक ब्रश होता, हाउ वुड यू यूज इट इन टुडेज वर्ल्ड. तो आप आज की दुनिया में उसको कैसे यूज करते. अपना आंसर लिख सकते हैं कि आप उस ब्रश का क्या करते. ठीक है. मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मैं बच्चे आपको नोट कराए देती हूँ. I would use a brush to paint food for hungry. मैं जो यूज़ करती हूँ उसका, मैं भूखों के लिए खाना पेंट करती, जिनके पास घर नहीं उनके लिए घर पेंट करती, जो बीमार है उनके लिए मेडिसिन पेंट करती, चिल्ड्रन के लिए बुक पेंट करती, है ना. और आई वुड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर दोज इन नीड. और जिनको ज़रूरत है उनको एक अच्छा प्लेस, अच्छा मतलब उनको हेल्प करने की ओवरऑल कोशिश करती, है ना. तो आई वुड यूज अ ब्रश टू पेंट फूड फॉर द हंग्री, होम फॉर द होमलेस, मेडिसिन फॉर द सिक एंड बुक फॉर द चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन. I would try to make the world a better place for those in need. ठीक है. So I would use a pen to paint food for the hungry, home for the homeless, medicine for the sick, and book for the children without access to education. I would try to make the world a better place for home in need. ठीक है. क्लियर है. चलिए बच्चे, अगर क्लियर है तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस लर्न. लेट अस लर्न के अंदर है द वर्ब ड्रॉ हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. ड्रॉ का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में. मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट मीनिंग इन कॉलम 2. कॉलम 1 को कॉलम 2 के एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ मैच करना है. जैसे हिज स्पीच ड्रू लाउड अपॉलॉज फ्रॉम द ऑडियंस. हिज स्पीच ड्रू लाउड अपॉलॉज फ्रॉम द ऑडियंस. तो बच्चे इसमें इस ड्रू का क्या मतलब है बताइए.
इसका मतलब है उसकी जो स्पीच ने लाउड अपोलाउज जो ऑडियंस से रिसीव करी, है ना। तो इसमें है उनका एक रिएक्शन लिया, उसकी स्पीच ने जोरदार तालियों से ऑडियंस का रिएक्शन लिया, है ना। तो इसका बच्चे क्या ऑप्शन करेक्ट है? कॉलम 2 में आप थर्ड वन चेक करो, गॉट अ रिएक्शन, उसको रिएक्शन मिला, है ना। सो हिज स्पीच ड्रू लाउड अपोलाउज फ्रॉम द ऑडियंस, सो इसका थर्ड वन है गॉट अ रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वन है जी, द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड फ्रॉम ऑल नाइबरिंग प्लेस। जो इवेंट था उसने क्या ड्रॉ कर लिया? ह्यूज क्राउड, बहुत बड़े अमाउंट में भीड़, फ्रॉम ऑल नाइबरिंग प्लेस, सारे पड़ोसी जगहों से, ठीक है। तो उसने इवेंट ने क्या ड्रॉ किया? ये अट्रैक्ट किया, बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी कर दी, है ना। सो इसका फोर्थ वन बच्चे करेक्ट होगा अट्रैक्ट। द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड फ्रॉम ऑल नाइबरिंग प्लेसेस, तो यहाँ आएगा बच्चे अट्रैक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। देखो इसका थर्ड वन है प्लांट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो प्लांट एब्जॉर्व करते हैं पानी फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो इसका सिक्स्थ वन देखिए आप, एब्जॉर्व, प्लांट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो प्लांट वाटर एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से, तो यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है एब्जॉर्व करना, है ना। प्लांट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, यहाँ सिक्स्थ वन करेक्ट है एब्जॉर्व। नेक्स्ट है आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंचा, व्हेन द ट्रेन वॉज ड्रॉइंग इन टू द स्टेशन, जब ट्रेन थी ड्रॉ कर चुकी थी इनटू द स्टेशन, स्टेशन से मूव कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ बच्चे फिफ्थ वन आप चेक करिए जिसमें है मूविंग। आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वॉज ड्रॉइंग इनटू द स्टेशन, यहाँ पर आएगा फिफ्थ वन करेक्ट है कॉलम 2 से, जो कि है मूविंग, क्लियर। फिफ्थ वन देखेंगे, द रूम वॉज डार्क सो शी ड्रू द कर्टेन टू लेट द सनलाइट इन, कमरे में बहुत अंधेरा था इसलिए उसने कर्टेन को थोड़ा सा खिसका दिया, ड्रू कर दिया, ओपन कर दिया, जिससे कि सनलाइट अंदर आ सके। तो यहाँ ड्रू का मतलब है बच्चे फर्स्ट वन देखो ओपन्ड, उसने पर्दा खोल दिया, है ना। तो द रूम वॉज डार्क सो शी ड्रू द कर्टेन टू लेट द सनलाइट इन, इसका फर्स्ट वन करेक्ट है ओपन्ड, ठीक है। सिक्स्थ वन देखेंगे, ही ड्रू अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर, तो इसका तो बच्चे फिर एक ही बचता है पुल्ड आउट, ही ड्रू अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फोल्डर, तो इसका सेकेंड वन करेक्ट है पुल्ड आउट, क्लियर। बढ़िया से, चलो अगर क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो फर्स्ट है हिज स्पीच ड्रू लाउड अपोलाउज फ्रॉम द ऑडियंस, तो इसका थर्ड वन करेक्ट है गॉट अ रिएक्शन। सेकंड है द इवेंट विल ड्रॉ ह्यूज क्राउड फ्रॉम ऑल नाइबरिंग प्लेसेस, तो इसका फोर्थ वन करेक्ट है अट्रैक्ट। नेक्स्ट थर्ड है प्लांट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो इसका सिक्स्थ वन करेक्ट है एब्जॉर्ब। फोर्थ है आई रीच द स्टेशन when the train was drawing into the action station, इसका फिफ्थ वन करेक्ट है moving। नेक्स्ट फिफ्थ है the room was dark so she drew the curtain to let the sunlight in, जिसका फर्स्ट वन करेक्ट है opened। सिक्स्थ है he drew a piece of paper from the folder, इसका सेकेंड वन करेक्ट है pulled out, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है देन मूव करेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है फिलिंग द क्रॉसवर्ड्स, क्लू हैज बीन गिवन बिलो, यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम। देखो आपको ये आपको क्रॉसवर्ड्स को फिल करना है, नीचे आपको हिंट दी है जैसे अक्रॉस,
लेफ्ट टू राइट जाने के लिए आपको द फास्टेस्ट स्पेस ऑफ द हॉर्स, वो सेकंड में फिल होगा। फास्टेस्ट स्पेस ऑफ द हॉर्स क्या हॉर्स क्या होता है? गैलॉप, जो पोएम में वर्ड है गैलॉप, है ना। सेम एज आप डाउन में देखो, फर्स्ट देखो रन अवे फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से भाग जाना, तो फ्लीज पोएम में यूज हुआ है ये वर्ड FLEES, है ना। इस तरीके से बच्चे मैं आपको इस क्रॉसवर्ड को यहाँ आपको आंसर लगा दूंगी, आप प्लीज इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने थर्ड वन पे आ जाएंगे। थर्ड वन वी हैव there are certain expressions that convey a sudden feeling or reaction that can be used to express a variety of emotion and thoughts. Example, he whisper hush. Hush denote the act of silencing someone, है ना। hush का मतलब है चुप रहो, किसी को चुप कराना टाइप, ठीक है। तो एक तरफ आपको कॉलम 1 में एक्सप्रेशन दिए हैं, कॉलम 2 में उनके इमोशन और रिएक्शन है, जस्ट मैच करना है, ठीक है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। जैसे कि देखेंगे फ्यू, फ्यू फ्यू का क्या एक्शन रिएक्शन इमोशन क्या रहेगा? फ्यू का सरप्राइज, नो। पेन, नो। स्टेक, नहीं। अट्रैक्ट अटेंशन, नहीं। फ्यू रिलीफ, एग्जैक्टली फ्यू का होता है बच्चे रिलीफ, ठीक है। मैं इनको डायरेक्ट बता दूं, देखो फ्यू का फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है, रिलीफ। नेक्स्ट है एक का बच्चे आपका सेवंथ वन करेक्ट है, अलार्म, एक अलार्म। थर्ड है आउच, आउच कब करते हैं? तब दर्द होता है, तो सेकंड है इसका पेन, आउच पेन। फोर्थ है yippee, yippee कब करते हैं? इन खुशी, है ना। सो सिक्स्थ वन इसका करेक्ट है, डिलाइट। नेक्स्ट है फिफ्थ, वो जब सरप्राइज होते तो इसका फर्स्ट वन करेक्ट है, सरप्राइज। सिक्स्थ है उप्स, जो बाय मिस्टेक हम कुछ करते हैं तब हम ऐसा रिएक्ट करते हैं ना, उप्स, तो इसका थर्ड वन करेक्ट है, मिस्टेक। नेक्स्ट है सेवंथ, जो है अट्रैक्ट अटेंशन, तो फ्यू जिसका है रिलीफ, फिफ्थ वन। एक जिसका सेवंथ वन है अलार्म। थर्ड है आउच जिसका है पेन। फोर्थ है yippee जिसका है डिलाइट। फिफ्थ वो जिसका है फर्स्ट सरप्राइज। सिक्स्थ है उप्स जिसका है थर्ड मिस्टेक। सेवंथ है हे जिसका है फोर्थ वन अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने क्वेश्चन में ये भी देखा था कि हमें कॉलम 1 से फिर 5 सेंटेंसेस भी क्रिएट करने हैं, 5 एक्सप्रेशन भी क्रिएट करने हैं, है ना। यूज एनी 5 एक्सप्रेशन। तो देखो, एक हम ले सकते हैं फ्यू, इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द एग्जाम वॉज टफ बट आई डिड वेल, है ना। तो थोड़ा रिलीफ जोन में आ जाना। सो दैट एग्जाम वॉज टफ बट आई डिड वेल। सेकेंड है एक, इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं? दैट स्पाइडर इज ऑन द वॉल, देयर्स अ स्पाइडर ऑन द वॉल। आउच, आउच के लिए I just stubbed my toe on the chair. I just stubbed my toe on the chair. Fourth one है yippee. Yippee का we are going to school trip tomorrow. Yippee, we are going to school trip tomorrow. Next है hey. Hey, wait for me before you start the game. ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, ये सेंटेंसेस हो सकते हैं। चाहिए तो कोई और सेंटेंसेस भी आप यहाँ बना सकते हैं खुद से, ठीक है। तो फ्यू, दैट एग्जाम वॉज टफ बट आई डिड वेल। नेक्स्ट है एक, दैट्स अ स्पाइडर ऑन द वॉल। नेक्स्ट है आउच, आई जस्ट स्टब्ड माई टो ऑन द चेयर। फोर्थ वन है yippee, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप टुमारो। नेक्स्ट है फिफ्थ, हे, वेट फॉर मी बिफोर यू स्टार्ट द गेम। ओके, ठीक है।
आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर अच्छे से क्लियर हो गया देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बच्चे लेट अस लिसन। ठीक है जी, लेट अस लिसन के अंदर बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू विल लिसन टू 5 स्पीकर स्पीक अबाउट अ मैजिकल पावर दे विश फॉर। As you listen, match statement 1 to 7 with the speaker 1 to 5. There are 2 statements you do not need. Transcript for teacher on page number 152. देखो, आप पेज नंबर 152 पे देखोगे तो आपको ना 5 स्पीकर के स्टेटमेंट दिखेंगे। सिंपली आपको उनको यहाँ मैच करना है कि ये स्टेटमेंट किस स्पीकर का है। ठीक है जी, तो चलिए इसको अगर हम डायरेक्ट करा दें आपको, तो देखो, पावर ऑफ हीलिंग एलिमेंट, पावर ऑफ हीलिंग एलिमेंट, ये किसने कहा, ये किसके स्टेटमेंट है, ये है स्पीकर 4 का स्टेटमेंट, ये 4th स्पीकर ने कहा था। सेकंड है एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, ये बच्चे फर्स्ट स्पीकर ने कहा था। सेकंड है मतलब थर्ड है पावर टू कंट्रोल द वेदर एज पर नीड, पावर टू कंट्रोल द वेदर एज पर नीड, ये 5th स्पीकर का स्टेटमेंट है। फोर्थ है एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, ये फर्स्ट स्पीकर का स्टेटमेंट है। 5th है पावर टू प्रेडिक्ट वंस ओन फ्यूचर क्लियरली, पावर टू प्रेडिक्ट वंस ओन फ्यूचर क्लियरली, फर्स्ट स्पीकर का ये स्टेटमेंट है। 6th है एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली, एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली, सेकंड स्पीकर के स्टेटमेंट है। 7th है पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल, पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल, ये थर्ड स्पीकर का स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए तो इनको वंस एक बार रीड करेंगे। पावर ऑफ हीलिंग एलिमेंट 4th स्पीकर का स्टेटमेंट है। एबिलिटी टू एंड पॉवर्टी इन द वर्ल्ड फर्स्ट स्पीकर का स्टेटमेंट है। थर्ड है पावर टू कंट्रोल द वेदर एज पर नीड, 5th स्पीकर का स्टेटमेंट है। फोर्थ है एबिलिटी टू मेक वाइज बिजनेस डिसीजन, फर्स्ट स्पीकर का स्टेटमेंट है। 5th है पावर टू प्रिडिक्ट वंस ओन फ्यूचर क्लियरली, फर्स्ट स्पीकर का स्टेटमेंट है। 6th है एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन क्विकली, सेकंड स्पीकर का स्टेटमेंट है। 7th है पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल, पावर टू मूव अराउंड विदाउट यूजिंग व्हीकल, ये थर्ड स्पीकर का स्टेटमेंट है। करेक्ट है? इतना समझ आया बच्चे? चलिए, अगर लेट अस लिसन के अंदर समझ आ गया हो तो चलिए मूव करेंगे देन लेट अस स्पीक पर। फर्स्ट है जिसमें intonation is the rise and fall of the pitch of tone while speaking. The falling tone is the fall in the pitch of the voice from a higher level to low level. If is marked that the falling tone is generally used in imperative sentences. Such sentences are used in speech for different communication purpose, to express a command of an instruction, to ask for a favor, or to give a warning. Read the following sentences from the text with the following tone. सिर्फ आपको इन sentences को read करना है. Then come here. Seize the magic brush. Paint my fortress tall. Go and fetch some rice. ठीक है जी, क्लियर है? सिंपली बस इनको एक बार रीड ही करना है. चलिए देखेंगे अपना सेकेंड वर्क इन पैर. टेक टर्न टू मेक रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला and informal situation, formal and information situation, so sorry.
देखो फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती हैं। सिचुएशन 1, योर रिक्वेस्ट, टेक टर्न टू मेक रिक्वेस्ट। देखो आपको ये रिक्वेस्ट बनानी है, आपके पास यहाँ सिचुएशंस हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज ए क्लास पिकनिक। आपको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है अपने टीचर को। यू रिक्वेस्ट योर टीचर टू ऑर्गेनाइज ए क्लास पिकनिक। आपको पिकनिक के लिए जाना है, तो आपको अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक क्लास पिकनिक ऑर्गेनाइज करें। इस टाइप से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर्मली। वुड यू माइंड इफ वी हैड ए क्लास पिकनिक मैम? वुड यू माइंड इफ वी हैव अ क्लास पिकनिक मैम? ठीक है। सेकंड है, यू रिक्वेस्ट योर क्लास टीचर फॉर एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड सिंस यू मिस्ड इट लास्ट वीक। आपको अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करना है कि आपको एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स का पीरियड दें क्योंकि आपने लास्ट वीक उसे मिस कर दिया। सो बच्चे आपका यहाँ क्या रिक्वेस्ट रहेगा? डू यू थिंक यू कुड ऐड एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड सिंस वी मिस्ड इट लास्ट वीक? डू यू थिंक यू कुड ऐड एन एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पीरियड सिंस वी मिस्ड इट लास्ट वीक? Okay. Third situation we have, you request your activity in charge teacher to include you in the upcoming inter-school event. आपको अपने एक्टिविटी इंचार्ज टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको इंक्लूड करे जो आने वाले इंटर स्कूल्स के इवेंट हैं। तो कैसे रिक्वेस्ट करोगे? Would it be possible to include me in the inter-school event, sir? Would it be possible to include me in the inter-school event, sir? ठीक है, करेक्ट है। चलिए करेक्ट है। तो देखेंगे, देखो आपको नीचे बताया भी गया कि फॉर्मल को आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक वुड यू माइंड इफ, डू यू थिंक यू कुड, आई वुड लाइक टू, या वुड इट बी पॉसिबल। ठीक है। और इनफॉर्मल को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कैन और विल यू, डू यू माइंड इफ, बाय एनी चांस डू यू नो, या फिर आई वॉज वंडरिंग इफ। ओके चलिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट देख लेंगे। सिचुएशन नंबर 1 में है, यू रिक्वेस्ट योर सिबलिंग टू हेल्प यू विद द कंप्लीटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। देखो आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपनी सिबलिंग से हेल्प चाहिए। कैसे रिक्वेस्ट करोगे? इनफॉर्मली, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट प्लीज? ऐसे तो बोलोगे, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट प्लीज। सेकेंड सिचुएशन है, यू रिक्वेस्ट योर मॉम या यू रिक्वेस्ट योर मदर टू इनरोल यू इन डांस क्लास। तो आपको अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको डांस क्लास इनरोल करवाएं, ज्वाइन करवाएं। कैसे रिक्वेस्ट करोगे? मॉम, डू यू माइंड if I join a dance class? Mom, do you mind if I join a dance class? Third situation है, you request your cousin to come over to spend the weekend with you. आपको अपने कजिन के साथ रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके साथ एक वीकेंड स्पेंड करे। ठीक है। तो कैसे रिक्वेस्ट करोगे बच्चे? हे कैन यू कम ओवर दिस वीकेंड? हे कैन यू कम ओवर दिस वीकेंड? या फिर उनका अगर कोई नेम है तो आप नेम से उनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस राइट। ठीक है, इसके अंदर बच्चे फर्स्ट है imaginative essay is a type of creating writing where the writer use a imagination. Imagination ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे राइटर अपनी इमेजिनेशन यूज करता है। एंड इमेजिनेशन ऐसे कैन बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। इमेजिनेशन ऐसे हो सकता है रियल लाइफ के इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। It is usually a descriptive piece or personal reflection. Read the sample of imaginative essay. आपको एक imaginative essay का ये एक सैम्पल दिया गया है, उसको आप पहले रीड करो। My life as eco flash.
मेरी लाइफ एक इको फ्लैश जैसी। तो सिंपली आपको बस रीड करना है इसको। तो imagine an ordinary 13-year-old student who is also a secret superhero protecting the environment. That's my life as Eco Flash. By day, I am Minu, an ordinary grade 8th student. By evening, I use my power to keep my neighborhood green and clean. As Eco Flash, I have the ability to grow plants, purify water, and clean polluted air with a wave of my hand. I wear a green suit with a glowing leaf symbol and carry a small seed pouch that hold magic seed to restore damaged area. My mission is to fight pollution, save tree and educate people about taking care of our planet. My friend wonder why I am always carrying a planet in my bag or why my shoes are muddy, but I can never tell them the truth. मतलब एक सुपर हीरो की जैसे एक ये इमेजिनेशन ऐसे है। Once my little brother showed me turning a garbage dump into a beautiful garden and almost spilled my secret to our parents. I had to convince him it was a magic trick. Being Eco Flash is not just about power but also responsibility. Every time I see clean street, blooming flower, and children playing in green park, I feel proud. I know that even small changes can make a big difference, and that's what keep me going. ठीक है जी, ये था हमारे इमेजिनेशन ऐसे। अब सेकंड पार्ट में क्या है? Complete the given checklist based on your observation and understanding of what an imaginative essay include. Share your answer with the classmate. अब आपको चेकलिस्ट दी हुई है इस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे, ठीक है, उसको समझो। व्हाट इज एन इमेजिनेशन ऐसे इंक्लूड? इमेजिनेशन ऐसे में एक्चुअली इंक्लूड क्या होता है? जैसे फर्स्ट है टाइटल, एक रेलिवेंट टाइटल होना चाहिए। सेकंड है उसका इंट्रोडक्शन, captivating opening sentence to catch the reader's attention. Second, clear statement of setting, situation or main idea. Third, establish the tone. Fourth, introduce the narrator briefly if applicable. ठीक है। थर्ड हो सकता है setting and context, description of the setting to create a mental picture. Second, clear time frame, past, present or future. Next, brief explanation of any unique or imaginative element. For example, power, fantasy world. Fourth, character. Main character introduced with unique traits. Next, supporting character, briefly described if relevant. Next, fifth है central idea, clear focus on a single powerful idea or narrative. Next, logical flow of event, even if the story involve imagination or fantasy. Sixth है language and style, use of use of sensory detail, sight, sound, touch, smell and taste to enhance the narrative. Next, creative metaphor or similes to enrich description. Next है resolution, key turning point or moment of realization या फिर realization of the main idea, clear takeaway message. And in last, conclusion, end or a reflective or thought-provoking note. Next, summarization, summarize the main message or leave the reader with a strong final impression. ठीक है, समझ लिया कि ये इमेजिनेशन ऐसे बनता कैसे है? फाइन देन, इमेजिनेशन ऐसे को इनमें से कोई भी एक इमेजिनेशन ऐसे पिक करो, सिंपली लिखना है। जैसे फर्स्ट है इमेजिन यू आर अ स्कार्फ दैट फ्लू अवे फ्रॉम अ cloth line. Describe the place you travel to and how to come back. Also write about
What you thought was most valuable experience. इमेजिन करो तुम स्कार्फ थे और तुम कहीं भी उड़ सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्राइब करो कहाँ किस प्लेस पे जाना चाहोगे, कैसे वापस आओगे, क्या थॉट रहेंगे तुम्हारे, एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो। और सेकंड है इमेजिन यू स्टम्बल्ड अपॉन अ मैजिक बुक इन अ लाइब्रेरी. The book transported you to a different time period. Describe your experience as an important learning. जस्ट इमेजिन कि आप स्टम्बल्ड हो गए एक मैजिक बुक में लाइब्रेरी में, ठीक है। अब वहाँ आप जो बुक है, बुक ने आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया किसी और टाइम पीरियड में, मे बी पास्ट मे बी फ्यूचर, ठीक है। सिंपली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि तुम्हें इससे फिर क्या शिक्षा मिलती है और तुमने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो देखेंगे कि हमने मैजिकल बुक एडवेंचर्स क्या देखा था। हम इसके ऊपर अपना एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, वंस रेनी आफ्टरनून, एक बार रेनी आफ्टरनून में आई फाउंड अ डस्टी बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी टाइटल्ड टाइम स्टोर. Its cover glowed faintly, and when I opened it, a light pulled me in. Suddenly, I was in ancient India, surrounded by a bustling market and colorful cloths. I saw merchants selling species and heard musicians playing sitars. I was like a dream, but real. I met a kind boy named Arjun who showed me his village. We explored a grand palace with tall pillars and yet sweet jalebis. But I noticed people were sad because a drought had dried their field. Using the book's magic, I wrote a new page about rain cloud. Soon gentle rain fell, and the villagers cheered as crop grew again. Suddenly, the book glowed, pulling me back to the library. I was back in 2025, but the adventures taught me something important. Helping others, even in small ways, can bring happiness. I will never forget my journey through time and the lesson that kindness matter. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप यहाँ वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वंस इसको भी एक बार रीड कर लें। देन देखो, वन रेनी आफ्टरनून आई फाउंड अ डस्टी बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी टाइटल्ड टाइम स्टोर. इट कवर्स glowed faintly, and when I opened it, a light pulled me in suddenly. I was in ancient India, surrounded by a bustling market and colorful clothes. I saw merchants selling species and heard musicians playing sitars. I was like a dream, but real. I met a kind boy named Arjun who showed me his village. We explored a grand palace with tall pillars and ate sweet jalebis. But I noticed people were sad because a drought had dried their field. Using the book's magic, I wrote a new page about rain clouds. Soon gentle rain fell, and the villagers cheered as crop grew again. Suddenly the book glowed, pulling me back to the library. I was back in 2025, but the adventures taught me something important. Helping others, even in small ways, can bring happiness. I will never forget my journey through time and the lesson that kindness matter. ठीक है, क्लियर है। ये था हमारा एक इमेजिनेशन ऐसे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस एक्सप्लोर. लेट अस एक्सप्लोर के अंदर बच्चे क्या है, चलिए फटाफट से रीड करेंगे. हैव यू हर्ड ऑफ इंडियाज फेमस मैजिशियन पीसी स्कोरर सर? He is known as one of the world's greatest magician and performed live magic shows in front of audience and on television internationally. He was awarded Padam Shri on 26 January 1964 for his contribution to the words of magic.
ठीक है। बेसिकली बच्चे ये सारा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, सिर्फ ये पढ़ने के लिए है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा प्लीज़। बस आफ्टर देन हो गया ये चैप्टर हमारा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो बच्चे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।